हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 फ्रीडम ऑफ इंडिया, बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, सोशल साइंस क्लास 5 माइलस्टोन्स बुक। लेट अस स्टार्ट विथ बुक एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। And correct answer is Dr. Rajendra Prasad. Question number 2. The first World War started in 1913, 1914, 1918, 1999. And the correct answer is 1914. Question number 3. Mahatma Gandhi stayed in Dash for almost 20 years. Options are India, England, South Africa, Japan. Correct answer is South Africa. Question number 4. The Jallianwala Bagh massacre happened in 1918, 1999, 1920, 1921. And the correct answer is 1990. Question number 5. Gandhiji launched the Dash in 1920. Options are Non-Cooperation Movement, Civil Obedience Movement, Quit India Movement, Satyagraha Movement. Correct answer is Non-Cooperation Movement. Exercise B, fill in the blanks. Question number 1. The Indian National Congress was formed on, answer is 18 December 1885. Question number 2. The first General Secretary of the Indian National Congress was, and the answer is A.O.U. Question number 3. Swaraj is my birthright and I shall have it was said by, answer is Tilak. He is also known as Lokmanya Tilak. His name is Bal Gangadhar Tilak. Question number 4. The British policy of dash and dash led to the partition of Bengal. Correct answer is divide and rule policy of British. Question number 5. The Muslim League was formed in the year, and the answer is 1906. Exercise C, match the following. Satyagraha means devotion to truth. Non-cooperation movement started after Chauri Chaura incident. Rowlatt Act means to arrest without trial. Dandi March, civil obedience movement. And Subhash Chandra Bose, the Indian National Army. तो इस तरह से आपको इसको मैच करना है. Then we have exercise D, write T for true and F for false. Question number 1. Jawaharlal Nehru was known as Frontier Gandhi, and this statement is false because खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था. Question number 2. The revolutionaries believed that the British could be driven away by using force, and this is correct statement. जो revolutionaries थे उनको ये लगता था कि ब्रिटिश जो रूल कर रहे हैं इंडिया पर उनको हम फोर्स से ही बाय फोर्स से ही हमारे इंडिया से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय वॉज हिट बैडली ऑन हिज हेड एंड लेटर डाइड ड्यू टू दिस इंजरी, एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हुई थी एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन. तो उनके सर पर डंडे की चोट लगी थी जिसकी वजह से उनको हेड इंजरी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 4. गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये ट्रू सेंटेंस है. गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट को मानते थे. क्वेश्चन नंबर 5. बाल गंगाधर तिलक गेव द कॉल जय हिंद. दिस इज फॉल्स. जय हिंद वॉज दिस कॉल वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस. Next we have question answers. Exercise E, answer these questions. Question number 1. Why was Indian National Congress formed? Indian National Congress क्यों form हुआ था? And the answer is the Indian National Congress was formed to unite India against the British. पूरे इंडिया को ब्रिटिशों के अगेंस्ट यूनाइट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स. अब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ये दो ग्रुप्स थे जिनके अलग अलग अपने थॉट्स थे. तो लेट अस सी द आंसर.
extremist. The extremists were the Congress leaders such as Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, and Bipin Chandra Pal, who felt that need to involve people in the freedom struggle. इनको लगता था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इनको लगता था कि हमें जो कॉमन पीपल है, इंडिया के जो लोग हैं, उन सबको हमें फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व करना चाहिए. वही मॉडरेट्स जो थे उनका क्या कहना था? मॉडरेट्स वर द लीडर्स लाइक बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, हु बिलीव्ड दैट द रिफॉर्म वुड टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड दैट द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस वुड प्रिवेल. इनको ये लगता था, मॉडरेट्स को, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता थे, इनको ये बिलीव था, विश्वास था कि जो रिफॉर्म है वो तभी धीरे धीरे होगा और एक न एक दिन ब्रिटिश जो है वो हमें न्याय देंगे और इंडिया को छोड़ के जाएंगे. तो दोनों ही जो ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, तो दोनों का जो थिंकिंग था वो बिल्कुल अपोजिट था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द रिवोल्यूशनरीज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट्स? रिवोल्यूशनरीज जो थे वो मॉडरेट से कैसे डिफरेंट थे, अलग थे? आंसर इज, रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल शुड बी ट्रीटेड द सेम वे इन विच दे ट्रीटेड द इंडियंस. रिवोल्यूशनरीज यानी कि जो क्रांतिकारी थे, उनका मानना था कि जिस तरह से ब्रिटिशों ने हमारे कंट्री के लोगों को यानी कि इंडियंस को ट्रीट किया था, इन द सेम वे हमें भी उनको ट्रीट करना चाहिए, टिट फॉर टैट. दे ऑल्सो बिलीव दैट ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन अवे बाय यूजिंग फोर्स. और उनका ये भी मानना था कि ब्रिटिशों को हम फोर्सफुली ही इंडिया से निकाल सकते हैं. वहीं जो मॉडरेट्स थे उनका मानना था, मॉडरेट्स वांटेड पीस, फ्रीडम इन अ पीसफुल वे. मॉडरेट्स का ये मानना था कि हमें जो फ्रीडम मिलेगा, हमें जो आज़ादी मिलेगी, वो पीसफुल वे में हमें मिलेगी. तो ये दो अलग अलग थिंकिंग वाले जो ग्रुप्स थे यहाँ भी, रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी और जो मॉडरेट्स थे, उनके बीच में ये डिफरेंस था थॉट्स का. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. आंसर इज, गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 में गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था. ही आस्क पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. अब इसमें उन्होंने लोगों को ये बताया, उनको ये आह्वान किया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में वो काम नहीं करें, अपने अपने जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनसे रिज़ाइन दें, लॉ फर्म, स्कूल्स, कॉलेजेस और जो भी ब्रिटिश गुड्स था उन सब का बायकॉट करें, कोई यूज़ नहीं करें. गांधी जी वॉज डिस्टर्ब्ड एंड कॉल्ड इट ऑफ ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश इन 1922. 1920 में ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. लेकिन चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ 1922 में, उसके बाद गांधी जी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और उन्होंने इस मूवमेंट का जो है बंद कर दिया था, इसको उन्होंने स्टॉप कर दिया था. तो ऐसा क्या हुआ था चौरी चौरा में उस टाइम कि जिसकी वजह से गांधी जी को ये बंद करना पड़ा? मैं बताती हूँ आपको. In 1922, at Chauri Chaura in Uttar Pradesh, an angry mob set fire to a police station and 22 police person lost their lives. ये जो इंसिडेंट था चौरी चौरा में, एक लोगों के ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस पर्सन जो थे उनकी डेथ हो गई थी. तो इस इंसिडेंट से गांधी जी बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत आहत हुए और जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद करवा दिया. Then next we have question number 5. Who became the first president and the first prime minister of independent India? And the answer is Pandit Jawaharlal Nehru became the first prime minister and Dr. Rajendra Prasad became the first president of independent India. Exercise F, think and answer. Question number 1. Mahatma Gandhi had to go on an indefinite fast to make the British hear his demands. How effective were these methods? महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा और जो सत्याग्रह है इसको उन्होंने हमेशा तवज्जो दी थी. तो इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ?
महात्मा गांधी यूज्ड फास्टिंग एज अ वेपन। महात्मा गांधी जी ने फास्टिंग यानी कि जो उनका अनशन था उसको उन्होंने एज अ वेपन यूज़ किया अगेंस्ट ब्रिटिश, एज ही बिलीव्ड इन पीसफुल प्रोटेस्ट। ये उनको लगता था कि ये जो है एक पीसफुल तरीका है प्रोटेस्ट करने का। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव एज इट मेड ब्रिटिश टू टेक बैक देयर पॉलिसीज सच एज सॉल्ट लॉ, रॉलेक्ट एक्ट एक्सेट्रा। और इसी की वजह से, गांधी जी की फास्टिंग की वजह से ब्रिटिशों ने कई बार अपने जो पॉलिसीज़ थी उनको पीछे लिया, जैसे कि सॉल्ट लॉ, है ना, नमक का सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, देन रॉलेक्ट एक्ट। इन सब का जो इन सब के पीछे, बंद होने के पीछे यही रीज़न है महात्मा गांधी जी का जो है पीसफुल प्रोटेस्ट बाय फास्टिंग। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? Answer is, British adopted the policy of divide and rule so that they could break the unity among the Hindus and Muslims. उस टाइम जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे वो यूनाइटेड थे। तो उस टाइम ब्रिटिशों ने ये देखा कि इनमें जो यूनिटी है उसको अगर हम ब्रेक कर दें, उसको अगर हम तोड़ दें तो हम इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ की, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग किया, और उसी का जो रिज़ल्ट था वो था बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश का पार्टीशन। So children, here we have finished the book exercises and question answers of chapter number 16, Freedom of India. We will meet soon in our next video जो होगा chapter number 18 के book exercises and question answers. Okay? चैप्टर नंबर 17 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बिफोर, पहले ही मैंने 17 का अपलोड कर दिया है, तो हम सीधे अब 18 चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, सो विल मीट सून, टेक केयर, बाय बाय।